Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. Today, I am back with another interesting topic, that is gender, religion, and cost. Dear students, as you know, we earlier discussed about social diversity. What is diversity? Simply, the thing we understood is that social diversity is the presence of socio-economic groups, different religious groups, different lingual groups, different cultural groups, और we can say different caste groups in our society. इसको हम social diversity कहते हैं. ये जो लेसन है इसमें हम पढ़ेंगे कि जेंडर, रिलीजन एंड कॉस्ट, ये जो तीनों चीजें हैं, these three things are social differences present in our societies. In this lesson, we will see how these social differences affect the politics and how politics affect them. I will repeat. In this lesson, we will learn how these social divisions affect the politics and how politics affect these social divisions. We are particularly talking about three social divisions or three social differences. That is gender, religion, and caste. Dear students, gender, as you know, it is a state of being a man or a female, a male or a female. Gender is something different from sex. Gender, when we talk about gender, it is always discussed in social perspective. Here, when we talk about gender, gender division tends to be understood natural and unchangeable. अगर हम अपनी सोसाइटी के ऊपर नजर डालेंगे, हमारा जो समाज में है, हमारा समाज हमेशा ये मानता है कि ये जो जेंडर डिफरेंस हमारी सोसाइटी में है, ये नेचुरल है, कुदरती है, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते. पहले ही मैंने कहा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. When we talk about sex, it means simply a biological thing. Different biologically, humans are different. But when we talk about gender, जब हम gender की बात करते हैं, ये हम social differences की बात करते हैं of a particular male or female. देखो, यहाँ पर जो इंसान है, समाज है, समाज में हम ये बात करते हैं कि जो भी जेंडर डिवीजन है, ये अनचेंजेबल है और ये नेचुरल है. ठीक, इसको हम कहते हैं कि देयर इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. देयर इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर? Simply, it is a discrimination of quality and quantity of labor given to men as compared to women. This discrimination of quality and quantity of work given to women as compared to men. This is called sexual division of labor. Women, we suppose that women do homework. They are only to bring up children. हम मानते हैं हमारे अपने समाज में कि ये जो औरतें होती है, इनका काम है खाली घर का काम करना, सफाई करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, या ये बच्चे पैदा करते हैं. इसके अलावा सोसाइटी में इनका रोल नहीं है. अच्छा, जब यही काम एक मर्द करता है, लाइक कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, और जब मर्द ये काम करता है, वो इसका मुआवजा लेता है, वो उसको उसके लिए पे किया जाता है. लाइक वी आर सीइंग इन अवर होटल्स. हम होटल्स में क्या देखते हैं कि मेल वहां पे शेफ होते हैं, वहां पे क्लीनिंग मेल करते हैं. लेकिन फर्क क्या है? घर में औरत काम करे तो कोई मुआवजा नहीं, कोई वैल्यू नहीं. बाहर अगर यही काम अगर मर्द करे तो उसको पैसे मिलते हैं. अच्छा, ये है इनइक्वालिटी, डिवीजन ऑफ लेबर. यहां पे वैल्यू नहीं है, औरत के काम का वैल्यू नहीं है एज कंपेयर टू मैन. ठीक, दूसरी बात अगर हम करेंगे कि यहां पर ये जो चीज है, इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. जब एक औरत काम करती है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं, उसको हम मानते हैं कि ये अल्लाह ने, ये नेचर ने इसको पैदा किया ही है, इसके लिए इसका काम यही है, घर में काम करना, खाना पकाना, क्लीनिंग करना या बच्चे पैदा करना, बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है.
लेकिन अगर हम यहां पर मर्द की बात करेंगे, यही काम जब मर्द करता है तो उसको मुआवजा, भरपूर मुआवजा मिलता है, उसके काम को वैल्यू मिलता है। तो दिस वेरी थिंग इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, दैट इज women are valued. Earlier, women were not allowed to participate in public affairs. When we talk about earlier periods, the women we are not allowed to participate in public affairs. कोई भी public affair हो, कोई भी public मसला हो, औरतों को बिल्कुल भी उसमें participate करने का हक नहीं था। चाहे कोई पॉलिटिकल इशू हो, सोशल इशू हो, बिल्कुल वुमेन को उसमें पार्टिसिपेट करने का कोई भी हक नहीं था। अच्छा, इसके बाद क्या हो, what happened after that? These women started protesting, demanding equal rights like educational rights and equal career opportunities. औरतों ने क्या किया, औरतों ने जब देखा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, they are not getting their rights, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, they demanded their rights, उन्होंने राइट्स के लिए डिमांड की, उन्होंने एजुकेशनल राइट्स की बात की, उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स की बात की, उन्होंने कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात की। उन्होंने कहा कि अगर एक मर्द काम करता है उसको पैसे दिए जाते हैं, उसके काम को वैल्यू किया जाता है, हम जब काम करते हैं हमें वैल्यू क्यों नहीं है? हमारे काम को वैल्यू होना चाहिए, हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, हमें मर्दों की तरह एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो व्हाट हैपेंड, these all things, these all protests and demonstrations changed into a movement which is popularly known as feminist movement, which is popularly known as feminist movement. What is this feminist movement? किसको कहते हैं feminist movement? Feminist movement simply means a radical woman's movement. Feminist movement means a radical woman's movement aimed at equality in पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। यानी कि ये जो फेमिनिस्ट्स थे, व्हाट दे डिड, दे एडुकेटेड वुमेन्स राइट्स। उन्होंने वुमेन्स राइट्स की वकालत की। उन्होंने कहा कि ये जो वुमेन है इनको राइट्स मिलने चाहिए, इनको मर्द के बराबर राइट्स मिलने चाहिए। इस तरह से ये जो फेमिनिज्म, पूरी दुनिया में फेमिनिज्म उभर गया और औरतों के हक के मुतालिक बातें उठने रहे। और आफ्टर दैट व्हेन फेमिनिज्म एग्जिस्टेड, द लाइफ ऑफ वुमेन चेंज्ड कंप्लीटली। औरतों की जो लाइफ है वो कंप्लीटली चेंज हो गई। उसके बाद हमने देखा कि 17th 18th सेंचुरी में कि ये जो वुमेन है उनको राइट्स भी मिलने लगे, उनको एजुकेशन भी मिलने लगी, वो पॉलिटिक्स में भी आ गए। ठीक, तो उसके बाद एक और चीज यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तीसरा पॉइंट। पहला हमने देखा कि सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा हमने देखा कि फेमिनिज्म, उसके बाद हम तीसरा चीज देखेंगे, दैट इज हाउ दिस जेंडर डिफरेंस इंपैक्टेड इंडियन सोसाइटी। यहां पर हम बात करेंगे कि इंपैक्ट ऑफ जेंडर डिवीजन ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर इस जेंडर डिवीजन का इफेक्ट क्या पड़ा। ठीक, अगर हम इंडिया में लिटरेसी रेट की बात करें कि पढ़ते कितने हैं लोग, तालीम कितनी है, तो 85% लिटरेसी रेट बॉयज में है एज कंपेयर टू गर्ल्स की। अगर हम बात करेंगे दैट इज देयर इज ओनली 60% लिटरेसी रेट अमंग गर्ल्स। और अगर हम दूसरा पॉइंट यहां पे इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर इस जेंडर डिफरेंस का इफेक्ट क्या पड़ा। पहला हमने लिटरेसी रेट देखा, दूसरा है वुमेन आर ईदर नॉट पेड और पेड लेस। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या है कि इंडिया के ऊपर जेंडर डिवीजन का इफेक्ट क्या पड़ा, वो यही है कि जो वुमेन है इंडिया में, या तो उनको काम का मुआवजा नहीं मिलता है या मुआवजा कम मिलता है। ठीक, तीसरा अगर हम बात करेंगे दैट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो देखो, यहां पर सेक्स रेशियो क्या होता है कि इंडिया, व्हाट हैपेंड इन इंडिया, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज है जहां पर इंपॉर्टेंस मिली खाली लड़कों को। नतीजा ये निकला कि जो गर्ल्स का रेशियो था, बर्थ रेशियो, वो कम होने लगा, और जो बॉयज थे उनका रेशियो इंक्रीज हुआ। क्यों? उन्होंने डिफरेंट तरीके अपनाए, मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मेथड्स दे अडॉप्टेड,
टू चेक दिस गर्ल बर्थ को चेक करने के लिए उन्होंने डिफरेंट तरीके अपनाए ताकि कोई गर्ल पैदा ना हो। तो इस तरह से सेक्स रेशो पर काफी असर पड़ा हिंदुस्तान में। इसके बाद जो लास्ट चीज है दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। इन इंडिया वुमेन फेस एक्सप्लॉयटेशन एंड हैरेसमेंट एंड आर नॉट सेफ इवन इन देयर ओन फैमिलीज। हिंदुस्तान में क्या हुआ, इस वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर डिवीजन, जेंडर डिसइक्वलिटी, कि हिंदुस्तान में क्या हुआ। एक और इफेक्ट ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज है जहां पर जो औरतें अपने घर के अंदर भी महफूज नहीं है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये है इफेक्ट जेंडर डिसइक्वलिटी का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर से मैं थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट करूंगा। यहाँ पे इस लेसन में हमने 3 चीजें भी देखी है। सबसे पहली चीज सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक। दूसरा हमने देखा कि जो फेमिनिस्ट अपने राइट्स को हासिल करने के लिए औरतों ने जो फेमिनिस्ट मूवमेंट लॉन्च की, उससे क्या हुआ, उनको राइट्स मिले। और तीसरा चीज हमने इसमें देखा कि ये जो है इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिफरेंस ऑन इंडिया के ऊपर इसका इफेक्ट क्या पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कल हम इंशाल्लाह एक और टॉपिक बनाएंगे, उस पर बात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।